میں ہی بہت سارے مسلمان تھے، یہ اب یہ مسلمان اور ہندو کہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، سارے کشمیری ایک جیسے تھے۔ یہ مولوی فاروق صاحب جو ابھی کے ہیں، ان کے فادر، تو ان کی معاشی ہماری بالکل یہ دیوار تھی، یہ دیوار، یہ ادھر سے تھے، یہ ادھر سے۔ وہ شین جنگ یا کچھ بھی ہوتا تھا، ان کے بڑے بڑے قصاب، ان کی پیر بھائی، تو بہت آنا جانا تھا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ کشمیر لائف اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود حسین۔ کشمیر لائف اسٹوڈیو سے جو سیریز میموریز نام سے آتی ہے، ایک یادوں کا سفر ہے۔ آج کی اس کڑی میں میں حاضر خدمت ہوا ہوں جناب خیم لتا بخلو صاحبہ کے گھر میں، تو آج ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے۔ میڈم، آپ کا خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سیاست میں رہے ہیں کافی ٹائم سے، اب بھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا واقعہ میں پوچھنا چاہوں گا، شروعات جس سے کریں گے، وہ دور ہے جب خواجہ غلام محمد شاہ چیف منسٹر بن گئے۔ ہم شروعات اس سے کریں گے۔ وہیں سے کریں گے۔ تو آپ نے بڑی نزدیکی سے دیکھا ہے وہ واقعہ، ہوا کیا تھا بیسیکلی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب ہمارے جو لیڈر تھے، بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، اور انہوں نے بہت کچھ قوم کو دیا بھی ہے، کشمیریوں کو بہت زیادہ دیا ہے انہوں نے۔ میں اس سب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، لینڈ ٹو ٹیلر وغیرہ بہت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد وہ چل ہی رہا تھا، وہ اچھا دور تھا۔ ان کے ہوتے ہوتے ہی میں نے نیشنل کانفرنس بھی جوائن کیا تھا۔ اور میں اگر اپنی کہانی بتاؤں کہ میں نے یہ پالیٹکس کیوں کیا تھا، یہ تو میں انگلینڈ میں چلی گئی تھی ان 50s، لیٹ 50s میں، بچے بہت چھوٹے تھے، 60s سمجھ لیجیے، 60s کا ارلی 60s وہاں بیتا ہے ہمارا۔ میں بھی پڑھتی تھی، میرے ہسبینڈ گئے تھے کامن ویلتھ اسکالر میں، اور اٹ واز ویری ویری پریسٹیجس فار دا فرسٹ ٹائم ان دوز ڈیز۔ 60s میں تو یہ بہت ہی پریسٹیجس ایوارڈ بھی تھا، اور یہ جو اسکالرشپ تھا بہت ہی، تو وہاں مجھے کافی ایکسپوجر ہو گیا۔ آئی واز ینگ، بہت چھوٹی تھی، اور نئی یہاں آزادی ہوئی تھی انڈیا میں، سب کچھ نیا نیا چل رہا تھا۔ ابھی تو ہم پرانے دور سے ہی چل رہے تھے، تھوڑا تھوڑا نکل رہے تھے، تو we were learning so many things۔ پڑھائی بھی ہو گئی، بچے بھی پیدا ہو گئے، تو یہ دور چلتا رہا۔ تو اس کے بعد یہ شیخ صاحب کے ٹائم پہ ہی 77 میں نے 75 میں جوائن کیا، وہاں سے آ کے، وہاں سے آ کے جرمنی، وہاں سے ہم انگلینڈ سے جرمنی چلے گئے تھے، اور وہاں سے آ کے تو اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ شیخ صاحب مجھے ملے تھے میرے بردر کے تھرو، تو انہوں نے پھر میری ایک کتاب نکلی تھی، تو وہ یہاں ان دنوں نا رہا ہوئے تھے اپنے گھر میں، وہ واٹرنگ پلانٹس کر رہے تھے اپنے یہاں شیخ باغ کے گھر میں۔ میں چھوٹی سی لڑکی تھی، میں نے نئی کتاب لکھی تھی ہندی میں، تو میں نے کہا سب سے پہلے، کیونکہ ان کے تعلقات میری فیملی کے ساتھ تھے، مطلب دھر فیملی کے ساتھ، میرے انکل تھے، ان کا آنا جانا تھا کافی، تو وہ چل رہا تھا۔ تو اور تھے بھی بہت بڑے وہ لیڈر تھے سب کے، یہ نہیں تھا کہ ایک طبقے کے ہوں یا اس کے ہو اس کے، تو کافی ریورنس تھی ان کے بارے میں۔ تو میں نے کہا ان کو تو پہلی کتاب تو انہی کو دے دوں گی۔ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی 2-4 کتابیں، جیسے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ تو مطلب لکھنے میں تو کافی، تو آئی واز ایکسائٹیڈ
میں نے کہا یہ تو شیخ صاحب کو دینا. وہ پانی وانی دے رہے تھے تو گارڈن میں ہی تھے لکیلی. تو پھر خورشید کہا کیا بات ہے, تو ان کو لگا کہ یہ کشمیری تو ہے مگر تھوڑی سی انیوژل سی ہے. میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے. کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا یہ میں نے کتاب لکھی ہے, ہندی میں لکھی تھی. تو کہنے لگے ہندی میں لکھی ہے, کشمیر کے متعلق لکھی ہے, معلوم ہے آپ کو کشمیر کا سارا کچھ؟ میں نے کہا سیکھ رہے ہیں, ایسے ہی سیکھ رہے ہیں. بیکاز آئی واز بہت ہی awesome, وہ کافی تھا نا ان کا رعب سا تھا, اور وہ مجھے ایسے کر رہے تھے بیٹھو بیٹھو. تو لڑکی تھی میں چھوٹی, مطلب نیچرلی لڑکی کی طرح کیا, اور مجھے کافی وہ بھی تھا, ولولہ بھی تھا دیکھنا ہے. تو بیٹھے تو تھوڑی دیر انہوں نے وہ کہا کہ یہ ایسے تھوڑے ہی ہے, ادھر سے آ گئے ادھر سے آ گئے, یہ بات مجھے پورا یاد ہے. تو کچھ کرنا چاہیے لوگوں کے. میں نے کہا میں نے وہ تہیہ کیا ہے انگلینڈ میں, اور جرمنی میں بھی میں کافی وابستہ رہی, کچھ سوشل ویلفیئر وغیرہ میں. لیڈیز کچھ تھی, ان کے ساتھ میری جان پہچان ہو گئی, ان کی بیٹیوں کے تھرو, ان کی ماؤں کے ساتھ. تو وہ کافی بزی تھی وہ اس کام میں, لوگوں کا کام کرنا دیکھنا. حالانکہ وہ بہت ہی ویلدی تھے ہمارے مقابلے میں, تو ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. They were already so advanced that we were all, ایسا لگ رہا تھا ہم کتنے پچھڑے ہیں. تو میں نے ان کو کہا نہیں میں تو کروں گی, وہ ضرور کروں گی. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ میں نے ایز انڈیپینڈنٹ کیا. وہ 71 کا تھا شاید, 71 کا ہوا میرا الیکشن ہوا کدل سے, وہاں سے آ کے. اس کے بعد 75 میں جب وہ اوپن ہو گئے, انہوں نے پھر سے وہ یہ کر لی, تو میں نیشنل کانفرنس میں چلی. لیکن 75 کے بعد پھر جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا وہ 84 کا ہو گیا. ہوا کیا تھا بیسیکلی, وہی جاننا چاہتا ہوں. ہوا تو کچھ نہیں, اور ہوا بھی بہت کچھ ہوا کچھ نہیں, مطلب کہ تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جان شی کی لڑائی. ٹو بی فرینک وتھ یو, یہ تو ابھی بھی چلتا ہے, اور پرانے زمانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. یہ جہاں تک میرا خیال ہی نہیں ہے, جو میں تھوڑا بہت سمجھ پا رہی تھی اس وقت, تو غلام محمد شاہ تو بہت ہی پرانے تھے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کافی شانہ بے شانہ شیخ صاحب کے ساتھ رہے, جبکہ ان کے بچے چھوٹے تھے. ان کا تو وہ داماد تھے, محی الدین شاہ تھے. وہ محی الدین شاہ بھی چھوٹا ہی تھا. تو مگر باقی جتنے بھی تھے نا, شیخ فیملی سے بھی, ان کی فیملی سے باقی جتنے وابستہ تھے, they were closer to him. That is what I heard. حالانکہ شاہ صاحب تھوڑے بہت کڑک مزاج کے تھے, کافی غصہ کرتے تھے کافی. تو مگر وہ بھی میں نے دیکھ لیا. اس کے بعد فاروق صاحب آ گئے. فاروق صاحب واز اپ کمنگ, ینگ, ماڈرن آئیڈیاز. تو مجھے لگا کہ یہ بالکل مطلب جیسے میں سوچتی ہوں, ہم نے کہا یہ تو بہت آگے لے جائیں گے اپنے دیش کو, اپنے. مگر آخر کار پالیٹکس از پالیٹکس, تو اس میں تو ہزار چیزیں اندر سے ہوتی رہتی ہیں, کافی اسپائریشنز بھی ہوتی ہیں, باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس ڈیٹیل میں مجھے معلوم نہیں ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا. تو مگر میں بھی چاہتی تھی کہ فاروق صاحب بھی آ جائیں. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی اون پرسنل اوپینین, کیونکہ ینگ تھے, ہم ریلیٹ کر رہے تھے نا ان کے ساتھ. مگر ایک بات یہ تھی کہ ان کا شاید اکارڈنگ ٹو پالیٹکس ان کا مزاج لوگوں سے اتنا بیٹھتا نہیں تھا. تو کنیکٹڈ نہیں تھے لوگوں کے ساتھ. نہیں, کنیکٹڈ تو تھے, ابھی آئے ہی تھے نئے. He was in somewhere, he had come from
इंग्लैंड से भी आए थे और यहाँ भी पढ़ाई वढ़ाई के सिलसिले में डॉक्टर बन के आए थे। तो मुझे नहीं पता उनको यहाँ के अप्स एंड डाउन्स उतना पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होता है, चलता है लोगों के साथ, उठो बैठो। और मेरे दिल में यही एक चीज़ थी कि हम भी क्यों नहीं करते हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ है, दूध है, स्कूल है, हाइजीन है, सड़कें हैं, फ्रीडम है, एवरीथिंग। So that I used to be ruled with that kind of atmosphere. तो मेरे हस्बैंड भी, हम भी मॉडर्न, वो हमें लग रहा था ठीक। तो मगर बहुत कुछ ऐसा था कि ये he was not serious about so many things. अच्छा, सीरियसनेस में उनको या सीख रहे थे, नए नए आए थे तो वो भी। और फिर उन्होंने पंगा ले लिया पहले सेंटर से उनको बनाने में, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स भी था थोड़ा बहुत, किसको कौन चाहता था, कहाँ क्या था, थोड़ी सी लॉबिंग भी थी विद इन द पार्टी। तो उसमें उनको लग रहा था कि कुछ एक और यंग टर्क्स थे तो वो तो फारूक साहब के साथ थे। तो अब शायद आपको मालूम होगा कि जब शेख साहब के होते होते ही फारूक साहब को बनाया था प्रेसिडेंट, तो लोग निकल के आए थे काफ़ी। उन्होंने उनके जीते जी उनको एक तरह का क्या कहते हैं उसको ना, वेलकम किया था शेख साहब को, उनके कि दैट वी एग्री विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। दैट इज़ हाउ आई परसीव्ड इट दैट वे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर होता गया और फारूक साहब को फिर वो आ गए पॉलिटिक्स में पूरी तरह से। और जब वो आ गए तो नेचुरली बस बचगाना चीज़ें कर रहे थे, थोड़ा सा बचपना भी और थोड़ा सा केयर फ्री टाइप था। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ फिट नहीं हो रही थी। ओल्ड गार्ड जो थे तो उनको काफ़ी लोग थे जो कि ये लग रहा था कि चीफ इस तरह नहीं होना चाहिए वो ये। मगर मिसेस गांधी ने उनको आउट ऑफ टर्न बना लिया था। आउट ऑफ टर्न मीन्स कि उनका भी यही था कि he will deliver goods, he is a good person, he is modern, he is forward looking, he is, I mean, बट उसमें से इंदिरा गांधी की कहाँ थी, क्योंकि पार्टी यहाँ की थी, डेमोक्रेसी मेंबर्स यहाँ के थे, असेंबली यहाँ की थी, तो वो कैसे आउट ऑफ टर्न उसको बनाती फारूक साहब को चीफ मिनिस्टर? आउट ऑफ टर्न वो उस तरह का तो नहीं हुआ, वो इंतखाब तो उस तरह नहीं हुआ उस वक़्त। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली। अच्छा, जब शेख साहब चले गए तो अचानक? अच्छा, वो हाँ, अचानक तो उस वक़्त नहीं, उस वक्त तब तक तो ये आए थे ना, प्रेसिडेंट भी बने थे, फारूक साहब तो प्रेसिडेंट थे। और फिर उनके साथ भी थे काफ़ी जो थे ओल्ड गार्ड, वो शाह साहब के साथ थे। तो फिर इवेंचुअली हुआ कैसे ये, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आ गई ओवरनाइट? नहीं, ओवरनाइट नहीं हुई। हुआ क्या था? वो कनक्लेव हो रहा था अपोजिशन वालों। सही। तो फारूक साहब ने ये सोचने के बगैर ही, या हो सकता है कि उनके भी कुछ ग्रीवेंसेस हो, गॉड नोज व्हाट, दैट आई डोंट नो। उन्होंने उनको बुला लिया, जो सारे अपोजिशन वाले थे उन्होंने उनको यहाँ कश्मीर में इनवाइट किया था। वहाँ ये हुजूरी बाग, इकबाल पार्क, इकबाल पार्क, तब तक तो हुजूरी बाग ही हुआ करता था, तो वहाँ बुलाया था। रामा राव वगैरह, उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे, बाकी कुछ था। जब तक सेंटर और स्टेट ऐसे नहीं बैठता है तब तक कोई चीज़ चलेगी नहीं। यू डोंट हैव टू गो ऑन डिफरेंट लाइन्स, परहैप्स दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अगर होगा तो तरक्की भी होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, फंड्स भी आएंगे, बहुत कुछ वो था यहाँ। तो शेख साहब तो चला रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था उनका। उसके बाद फारूक साहब आ गए तो बचगाना गए, थोड़ा सा वो कभी कुछ इन्होंने अटखेलियाँ की। और उसमें फिर मैं वहाँ गई प्लीड करने के लिए
मिसेस गांधी के पास। अच्छा हाँ, बिफोर दिस हैपेंड, अच्छा। शेख साहब के बाद ही। तो ये रिलेशंस उतनी नॉर्मल नहीं हो रही थी, कुछ कुछ गलत हो रहा था। यहाँ भी फारूक साहब को ये ख्याल नहीं था, कुछ यहाँ भी तकरीरें वकरीरें हो गई इलेक्शन में, तो वो एमएलए के उस वक़्त वो असेंबली इलेक्शंस वगैरह, उसमें भी उन्होंने अटरेंसेस नॉट सो प्लीजिंग, नॉट सो गुड। मैं अब कहना नहीं चाहती हूँ क्या बोला क्या, मैं भी जाती थी इन जलसों में और लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो आप फिर इंदिरा जी से मिले? मैं इंदिरा जी से मिली। क्यों मिले? इसलिए मिली कि ये जो खटपट है आपस की, ये मतलब सेंटर और स्टेट की, इसको ख़त्म कर लीजिए। तो ये आपको याद है कि आप अकेले थे या कोई और भी था? नहीं, मैं अकेली गई थी और फारूक साहब ने मुझे भेजा। अच्छा। हाँ, और क्या। फारूक साहब ने कहा नहीं था ना, पार्टी में काफ़ी अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं कुछ तो करो, कुछ तो करो। खेमलता जी आपको जाना पड़ेगा, आप तो जाइए, आप मैडम को बहुत गलत इम्प्रेशन है और बहुत गलत हो रहा है, तो बहुत ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने भी कहा, मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, सेंटर और स्टेट के रिलेशन बहुत ही इरोड हो गए हैं, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा जाओ, आपको कौन मना क्या, उन्होंने बल्कि कराई मेरी टिकट विकट। अच्छा। हाँ, मैं चली गई, उन्होंने टिकट भी करवाई। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है इसको रद्द कर दो। अच्छा, इंदिरा जी ने आपको कहा? हाँ, क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ना, इसको ये नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ठीक नहीं है, तो गलत ये निकल रहा है ना, मतलब आवाज़ें गलत निकलेंगे या इम्प्रेशन कुछ गलत हो जाएंगे, तो इसलिए उसको रद्द कर लो एंड देन इट विल बी ऑल राइट। मैं वहाँ से आके उनको कह दिया, मैंने फारूक साहब से बिल्कुल कहा, मैंने कहा, बल्कि मैंने कहा ये तो उस वक़्त वो टाइगर हॉल में कोई यामिनी कृष्णा मूर्ति थी, आई थी। उन्होंने कहा नहीं मुझे अब जाना है इनाग्रेशन में, तो मैं तो इस वक्त नहीं सुनूंगा। मैंने कहा नहीं आपको सुनना है, जैसे मैं आपसे बात कर, नहीं आप बैठिए, मैं बता रही हूँ कि इन्होंने इस तरह का कहने लगा, वो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, कहने लगा चलिए अब बाकी बातें कार में करेंगे, आप भी चलो, आप भी वहाँ चलो। मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे मैसेज देनी है, बोलना है, मुझे अपना काम तो करना है, तो इसलिए जिसके लिए मैं वहाँ गई थी ये बात तो मुझे कहनी है और आप बैठ के सुनिए। मैंने उनको कहा, मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप बैठे, उसने कहा रास्ते में सुनेंगे बाकी बात। फिर मैंने उनको कहा कार में, वो जैसे आप बैठे हैं आप कार में ही बैठे, मैंने कहा उन्होंने इस तरह कहा, इसको रद्द कर दो, वो मत करो, आप ये कैंसिल करो, ये कैंसिल कर लो कॉन्क्लेव। उसने कहा अब नहीं होगा ये इट इज़ इम्पॉसिबल। मैंने उनको वो तो कल से आ रहे हैं अब, तो ये मैं क्या कहूँ कि नहीं सवाल ही नहीं। मैंने कहा नहीं तो फिर मुश्किल है, वो बहुत ही गुस्से में थी, तो मगर तब भी कुछ ऐसे वैसे तो कर ही लिया। उसके बाद अंदर से क्या चल रहा था आपको नहीं पता? हमारी आई हैड नो क्लू अबाउट दैट टिल आई मेट मिसेस गांधी, शी डिडंट से, मगर उसने। अच्छा, उसके बाद आप फिर मिसेस गांधी से मिले? हाँ, आप बता रही हूँ ना। उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई, इनको बता दिया, मैंने कहा कॉन्क्लेव कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद जो आपको करना है फिर ठीक हो जाएगा। एंड इस तरह टकराव की ये सियासत ठीक नहीं है, तो और हमें क्या है, हमें लोगों को ठीक करना है, उनके मसाइल को ठीक करना है, सब कुछ आराम से होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि अगर मुशावों को से एक दूसरे को दिखा लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नाउ इट्स टू लेट, सवाल ही नहीं है, वो तो आ रहे हैं, तो होटल भी बुक हो गए हैं, वेन्यू भी बुक हो गया है, सब कुछ बुक हो गया। और एक और बात हो गई कि जब वो दूसरा कॉन्क्लेव था, उस दिन सारे शेख साहब के जितने भी कोलीग्स थे, इंक्लूडिंग शाह साहब, बाकी जितने भी थे मिनिस्टर्स वगैरह, एक्स मिनिस्टर्स, वो भी थे वहाँ, वो भी आए थे।
लोग हंस रहे थे क्योंकि रामा राव की लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज, वो गड़ पता नहीं क्या कह रहा था, किसी को समझ में नहीं, लोग हंस रहे थे, लोग अजीब, उनको पता कोई ट्रांसलेशन फिर बाद में उठ के कर रहा था, तो हो गया। उसके बाद जब मैं आ गई तो फिर मेरे पास आते हैं कांग्रेसी, वो ये क्या कहते हैं, जनक राज गुप्ता और मंगत राम शर्मा बेचारे, पीएस बी टू दम। तो उन्होंने कहा आप गई थी, उनको कुछ नहीं पता था मैं कब गई थी क्या नहीं थी, तो उनके थ्रू आई थी मुझे मैसेज, मिसेस गांधी तुमको जल्द बुलाती है। अच्छा, हाँ मुझे बुला रहे थे। मैंने कहा मैं क्या बात हो गया, क्या यही कहा होगा, सोचा होगा कि इसने तो बड़े दावे किए थे करवा देंगे, ये कैंसिल तो हो जाएगा सब कुछ, ऑल विल बी ओके। मैं फिर दूसरे दिन चली गई। इस बार उन्होंने मुझे टिकट विकट न मैंने मांगी न करी, तो मैं सीधे चली गई। वहाँ जब उनके साथ मिल गई तो आई विल नेवर फॉरगेट दैट फेस ऑफ हर्स। शी वॉज सो एंग्री टू मी। मैंने तुमको बोला था, ये कभी नहीं मानता है, अपने मन की करता है, जो कुछ आता है मैंने उसको बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं तो बैठ ही गई कुर्सी पे। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप इधर से मिलो, ये एमएलएज थे कुछ यहाँ के, उनसे मिलो। वो मुझे कुछ नहीं पता था, आई वॉज सो ignorant about it. I didn't know anything. वहाँ चली गई तो वहाँ देखा मैंने कुछ एमएलएज थे, तो शाह साहब को भी नहीं पता था ये आ रहे हैं हमारे पास, मतलब उस फैक्शन में वो पीछे से चल रहा था वो, दैट आई डिडंट नो। वहाँ कौन एमएलए मिले आपको? वहाँ एक तो ये मंगत राम कांग्रेस वाले थे ऑलरेडी, देखिए जी हमने आपको बुला ही दिया, तो वो थे। और भी पता नहीं कांग्रेसी को कुछ थे, कश्मीरी नहीं थे, कांग्रेसी कुछ थे वहाँ, वो उनका याद नहीं है मुझे कौन कौन थे जो थे उन तो फिर व्हाट वाज द लास्ट डायरेक्शन दैट मिसेस गांधी गिव टू यू? शी डिडंट टेल मी एनीथिंग। अच्छा, उसने मुझे नहीं कोई डायरेक्शन दी, मगर इसने कहा कि गलत है, कुछ नहीं, आप उनसे मिलो। तो फिर उन्होंने कह दिया आप हमारे खेमे में आ गए। क्यों आ गए, क्या आ गए, फिर पता चला क्या हो रहा है। तो आई वॉज रियली पेन्ड। मैंने कहा ये तो पॉलिटिक्स है, मगर ये होता है, क्या करें। उसके बाद में जब यहाँ आ गई तो मैं तो अब हो गई ना उनके साथ, इट वॉज ए ऑर्डर टू मी। तो अब मैं क्या कर सकती थी, इट वॉज दे हैड मेड अप देयर माइंड, आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। You were actually following Prime Minister's directions. हाँ, that is true. I was following. She said, "Do you meet these people?" मैं अब मेरा न पीछे जाना था न आगे खाई तो पीछे, मुझे पता ही नहीं हो रहा था वो क्या रहा है। To be frank with you, honestly, at this age, अब मुझे जब मैं सोचती हूँ तो मगर जो कुछ होना होता है ना, वो तो अब आई एम डेडली कन्विंस्ड कि ये जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई रोक नहीं। उसको ये कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पता नहीं, दैट इज ट्रू, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन दैट थिंग, एंड इट हैज हैपेंड टू मी। आई वाज जस्ट लाइक ए रोबो। इस तरह किया तो हो गया, इस तरह आई हैड नो क्लू। जब मैं वापस आ गई मेरे हस्बैंड हैरान हो गए, वो बेचारे, आई हैड गॉन ऑल अलोन टू मीट मिसेस गांधी। जब मैं वहाँ से आ गई तो दूसरी बार मैंने कहा, उन्होंने बहुत मुझे मना किया, उन्होंने बहुत डांटा मुझे कि ये कुछ नहीं, ये डुबा देगा, ये इसको पता ही नहीं है, इसको मैंने इनको बनाया, मैंने इसके हाथ रखा था, मैं बेटे की तरह किया था बहुत। बट शी वॉज वेरी वेरी हर्ट, एक्सट्रीमली हर्ट। अगर उसके हाथ में छड़ी होती वो मुझे मार, ऐसा था उनका गुस्सा। तो बीइंग ए यंग लेडी, नॉट नोइंग अबाउट द
निटी ग्रिटी ऑफ पॉलिटिक्स और एनीथिंग. मुझे तो यही पता था लोगों का काम करना है, ये ठीक करना है, हाइजीन करनी है. आई हैड नो क्लू अबाउट सो मेनी थिंग्स विच वर गोइंग ऑन अंडरनीथ. तो अब हो गया तो हो गया. लेकिन फिर कैसे, मतलब इट वाज नॉट सो सिंपल एन ऑपरेशन. नहीं सिंपल नहीं था, वो हो गया था ना. ये शाह साहब के साथ तो 16 ना आए थे, 14 आए पहले ही, फिर और 2 आ गए थे. तो उसके साथ बहुत था, काफ़ी लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है. तो उसमें वर्टिकल स्प्लिट था. हाँ. मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि शाह साहब वाज एएस एडमिनिस्ट्रेटर और खुददार भी बहुत ज़्यादा खुददार. वो टू द पॉइंट बात करता था और लोगों का बहुत था दिल में उनको, काफ़ी ज़्यादा. ही वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सो लाइटली. वो तो मुझे पूरा याद है, मैं टूरिज़्म मिनिस्टर थी, एक कनाल थी यहाँ, तो मैं रोज़ उनको कह रही थी, तो वो मेरे साथ आ गए थे, क्या हो रहा है. इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट, हार-वन का कुछ. उन्होंने कहा कि ये बता दो उनको, वो सारे थे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वगैरह, ये बता दो कि कब तक हो जाएगा. उन्होंने मुझे कहा था 1-1.5 महीने तक, नहीं एग्जैक्टली बता दो कब तक हो जाएगा. उन्होंने उसको कहा 5 दिन और ले लो अलावा, मगर मुझे डेट एग्जैक्ट दे दो. वो नहीं, ऐसे नहीं थे वो कि चलता रहेगा, वो बात नहीं थी. शाह साहब वॉज ए मैन ऑफ एक्शन. वो करवाते थे काम, बहुत करवाते थे काम. ये सही है कि जो 16 लोग उनके साथ थे, उन सब ने पैसा लिया. ये तो बकवास है, मुझे औरों का कुछ नहीं पता है. मुझे तो, मैं तो आपके सामने बोल रही हूँ. पैसों का कहाँ आ गया बीच में, कहाँ किसने लिए पैसे. और उन दिनों कौन सी इतनी बजट थी. तो आजकल तो ये फिर भी पैसे जी दे रहे हैं, पैसे जी ले रहे हैं. आजकल बजट भी वैसे. उन दिनों तो नंगे थे लोग, बेचारे गरीब थे. क्या था उन दिनों लोगों के पास, बहुत ही थे. ये पैसा वैसे मुझे नहीं पता बाकियों का, बट एज फार एज आई एम कंसर्न ये सब बकवास. कहते हैं कि श्रीनगर की एक बिजनेस हाउस इसमें इस्तेमाल हुआ और मुफ्ती सईद साहब इसमें नहीं होंगे वो तो हुआ है. और क्या, बल्कि उसी बिजनेस, जब वो दूसरे दिन वो गवर्नर के पास जाना था टू प्रूव द मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस एंड ANC, तो उन्हीं के घर में तो रहे थे एक रात उस दिन, क्योंकि वो गांव से आने वाले थे काफ़ी MLAs. तो वो कहाँ से आ जाते बीच में. और कर्फ्यू लग गया था, तो ओथ वगैरह हो गया, तो वो तो तभी उन्हीं के घर में, बिजनेसमैन के घर में रहे थे. और वो बिजनेसमैन का जो घर था वो मेरे रिलेशन का घर था. अच्छा, रिलेशन नहीं था, मेरे फादर और अंकल वगैरह जो थे तो उनके फ्रेंड का घर था. फ्रेंड क्या था, भाई की तरह है. तो वहाँ तो आई वॉज वेरी फेमिलियर टू दैट बिल्डिंग where we stayed. जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं. आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही. तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर. हमें खिदमत करने का मौका दें. शाह साहब के टेक ओवर करने के बाद ज़बरदस्त रिएक्शन हो गया और कर्फ्यू लगाना पड़ा. नहीं, और उसकी वजह से वो कहते थे ना, मैं एक को नहीं मरने दूंगा. ये तो सही बात है. एक बार नहीं 10 बार मैंने उनकी जबान से सुना है. लोगों को कहता था, या सच बुकर मैं वही नहीं गुल कर्फ्यू, मुझे कुछ भी कहें मगर मैं मरने नहीं दूंगा कश्मीरियों को. क्यों, वो तो सही बात है. एक नहीं, अगर कर्फ्यू लाएंगे
Kenneth ये चुवाई मारान गारन मांस लोग छना मरा अभी भी हो रहा है। मरना मराना तो अब कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब उन दिनों था, उन दिनों छोटी बात भी हो जाती थी कहीं झड़प में या कुछ, तो अगर कोई गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी वैसी बात होती थी तो इट यूज्ड टू बी ए बिग बिग न्यूज़। अब शाह साहब की कैबिनेट में थी, तो हाउ वाज ही कंडक्टिंग हिज बिजनेस विद द कैबिनेट एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ओके, मगर ये खुददारी जब आती थी तो तब वो थोड़ा सा ही वाज पक्का अपने बोलने का या क्या उन्होंने उनके साथ बात की थी तो ही वाज पक्का अबाउट दैट। ही वाज पक्का, वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे काफ़ी। इधर उधर जाना तो अपना पहले सब वो था दैट वे। He was, but as far as his work was concerned, he was quite committed to that. और ये भी हो गया फिर सेंटर के साथ थोड़ा कि ये उन्होंने शायद उस वक़्त जो कांग्रेसी थे, they wanted to be inside the cabinet. अच्छा, वो पहले उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ले लेंगे, वो तब तो है ही है। तो कांग्रेस ने पहले फारूक अब्दुल्ला को टॉपल किया, हाँ, फिर चाहते थे कि वो शाह साहब की कैबिनेट में घुस जाए। शाह साहब ने रेजिस्ट किया क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट उन दिनों तो मुफ्ती साहब थे, तो वो चाहते थे कि हम भी आ जाएं इसमें, तो उनको भी था एस्पायरेशन, क्या कहें। तो फिर उन्होंने जब जगह नहीं मिली तो फिर कमज़ोर करना शुरू किया, काफ़ी किया। तो कांग्रेस की वैसे हमेशा से रीत रही है। मुझे मालूम नहीं, सुना तो मैंने भी है। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ के पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी पहले। मैं तो बाहर थे, हम तो इंग्लैंड में थे, जर्मनी में थे, तो कहाँ पता था। अब पता चला जब उसी में बैठे तो पता तो चलता ही है। उनको काफ़ी ये था कि हम भी बीच में आ जाएं, अरे हमारे ही पीठे पर चढ़ के ये लोग आए हैं, तो नेचुरली होता होगा, आई डोंट नो। एंड ही वाज वेरी वेरी कीन दैट टू विली नीली दे शुड गेट द पावर। अच्छा, कांग्रेस वाले ना, वही होता ही होगा, क्या पता। लेकिन देखिए, हम बात करते करते कहाँ से पहुँच गए। हालांकि शुरू तो ये होना चाहिए, हमको शुरू से शुरू करना चाहिए था। कोई बात नहीं। आपको क्या यादें हैं बचपन की? आप कब पैदा हुए? पैदा तो हो गई वो यही, अभी तो 80s में हूँ मैं, एंडिंग 80s सॉर्ट ऑफ। तो बचपन की यादें तो बहुत खूबसूरत हैं। तो कैसा था कश्मीर? बहुत, हमारा घर तो ये जॉइंट फैमिली थी, बहुत इर्द गिर्द भी हमारे पड़ोसी जो थे हमारे अपने थे, कोई पराया नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। यहाँ तो ये कोई बात ही नहीं थी, और हमारे घर में आना जाना कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कौन क्या है। तो घर में ही बहुत सारे मुसलमान थे। ये अब ये मुसलमान और हिंदू कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सारे कश्मीरी एक जैसे थे। हमारे घर में तो ये मोहम्मद सिद्दीक मेरे फादर ने अंकल के बहुत ही दोस्त, वो अंकल उनको कहते थे, हम चाचा जी कहते थे। इसी तरह हमारे वस्त रज़ाक, वस्त सुल्ला, ये तो आते ही जाते थे, और घर में भी पता नहीं कितने, ये तो मतलब थे, ये कोई घर की बात जैसी थी। तो अगर कोई, मेरी माँ 1000 बार कहती थी कि वो अली भट्ट था हमारे घर में, वो समझ लीजिए हेल्पर था, मगर ही वॉज मेजर डोमो ऑफ द हाउस। वो मैं के जाती थी, मेरी माँ ने कहा है मुझे, तो कहती थी कि कोई ख़ास चीज़ अगर मुझे छुपा के या कुछ सीक्रेट बात सिर्फ अली भट्ट को पता है, और किसी को नहीं। उस और किसी और पर भरोसा नहीं था।
یا میرے فادر اس کو کچھ لکھ کے بیچتے تھے کچھ بھی، جو تاکہ ان دنوں تو ماحول ہی ویسا تھا، تو وہ صرف علی بٹ کے ہاتھ میں، اور وہاں خیانت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھروسہ تھا ایک دوسرے پر۔ پھر ہم بھی پلے بڑے ہیں اس ماحول میں جہاں کوئی یہ بات ہی نہیں تھی۔ ہمارے پڑوسی تھے یہ مولوی فاروق صاحب جو ابھی کے ہیں، ان کے فادر، تو ان کی معاشی ہماری بالکل یہ دیوار تھی، یہ دیوار، یہ ادھر سے تھے یہ ادھر سے، وہ شین جنگ یا کچھ بھی ہوتا تھا، ان کے بڑے بڑے قصاب، ان کی پیر بھائی، تو بہت آنا جانا تھا، میرے بردر اور یہ مولوی فاروق، یہ نہیں اس کے فادر، تو وہ بیچارے جن کا وہ ہو گیا انتقال، تو وہ کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے اکٹھے، تو کافی ریورنس تھی ان کو ہماری اور ہم کو ان کی بہت زیادہ، ایک ہی تھا، ان کی معاشی تھی نا ہماری دیوار۔ آپ علی قدل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، علی قدل تو ہوا راجے قدل جہاں وہ رہتے تھے، مطلب آبائی ان کا گھر تھا، مگر آتے تھے وہ عیدگاہ کے ایریا میں کھیلنے کے لیے، وہاں عیدگاہ ہمارے پاس ہی تھا پیچھے سے، ہمارے پچھواڑے میں باغ تھا، ادھر سے ہی تھا، وہ آتے تھے کھیلتے تھے باتیں کرتے، اور ان کی وہ ماشی ماستر بہنیں اور اپنی ان کی بہنیں ادھر آنا ادھر آنا، میں نے کہا نا ہمارے دیوار یہ بھی نہیں، یہ دیوار تھی پتلی سی اور چھوٹی سی، اس میں میری بوا اور یہ سعید صاحب تھا ان کا نام، پیر بھائی، تو وہ ان کو ہم زون لال کہتے تھے، سنائے اگر سن رہی ہوگی وہ بھی سن لے گی شاید، اس کی بیٹی رجیہ اور سدھ لال، تو وہ آتی جاتے میری بہنوں کے ساتھ، دوستی کیا بہنیں تھے، تو وہ ایک دوسرے کو آواز مارتے تھے، رجی لالا بولے یا پھر کا رکعت، اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت کا جو اوورال سوسائٹی جو سری نگر کی تھی، اس میں وہ سوشو اکنامک سچویشن کیا تھی؟ سوشو اکنامک تو اوورال غریب تھے لوگ کافی، تو چلتا تھا، وہ تھا، زمینیں تھی لوگوں کے پاس، سب کے پاس تو نہیں تھی، مگر باقی تھوڑا بہت اپنے لیے تو ہوتا تھا، تو ویسے بھائی چارہ ہی تھا، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتے تھے، ایسی بات تھی، جو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کو تو کرتے ہی تھی، کسی نے سخنی کلمے قدمے ہیلپ ہوتا تھا، کرتے تھے، کافی کچھ کرتے تھے، اور اتحاس اتنا اچھا تھا، ایک زمانے میں تو ایک ہی تھا قوم، الگ الگ تو تھے نہیں، ڈی این اے بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، ہیبٹس آر سیم، کھانا پینا سیم ہے، ہماری وراثت ایک ہے، اگر فار انسٹنس کوئی ہمارا ہی ایک تھا، وہ معتبر تھا ہماری زمینوں کا، وہ روٹیاں اگر 10 بھی کھا لیتا، وہ کہتا تھا میں تو مجھے کھانا دے دو، چاول دے دو، بات دیوں آگ دیوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، روٹیاں پوٹیاں مجھ چھوڑ دو، یہ ہمارا اپنا مشترکہ اپنا کلچر تھا، یہ تھوڑی تھا مرنا تھا تو اس میں بھی ایک جیسی سب، ابھی بھی ہے، کیا فرق ہے، لینگویج ہے، سب سے بڑی بات تو لینگویج ہے۔ تو آپ پڑھنے کہاں جاتے تھے؟ میں پڑھتی تھی یہاں وشوا بھارتی، اچھا وشوا بھارتی، اور وہاں سے ہم جاتے تھے کشتی میں کہاں سے؟ نوا کدل سے، صفا کدل سے جاتے تھے، ہبا کدل کے آگے ہوتا تھا وہ، وہاں وشوا بھارتی، آپ وشوا بھارتی اسکول کی بات کریں کالج کی؟ اسکول کی بات کریں، نہیں اسکول کی نہیں، کالج تو پھر رہناواری میں تھا، کالج تو رہناواری میں تھا، وہ نہیں، تو آپ کہاں سے جاتے تھے کشتی میں؟ اپنے گھر سے، اپنے میکے سے، وہی ہے نا صفا کدل میں ہمارا سب رہتے تھے، جہاں وہ اسکول ہے وہ سمجھ لیجئے وہ نیوکلیس ہے، وہاں سے نکل گئے سارے، پھر جب بڑھتی گئی فیملیز تو دچن کو، مگر اسی ایریا میں، وہ گرجا جی کا ڈیڈی انہوں نے الگ لے لیا، پھر ان کا بھی الگ مکان بن گیا، ہمارا بھی تھوڑا
आगे चल के वहाँ पे डूम कदल, तो वहाँ पे ज़मीन बड़ी थी तो वहाँ ले, मगर उसी एरिया में, इधर उधर नहीं गए थे वो। तो आना जाना और जितने भी उधर, फिर मेरी शादी जल्दी हो गई, फिर मैंने प्राइवेटली कर लिया। अच्छा, स्कूल के बाद ही? स्कूल के बाद ही हो गया, मैट्रिकुलेशन के बाद मेरी शादी हो गई इमीडिएटली। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई कर ली प्राइवेटली सारे कुछ। तो तब तक ये रिवाज था कि बच्चियों को जल्दी शादी करो? हाँ, तब तक क्या, मेरी भी बहुत जल्दी हो गई थी। अगर मैट्रिक के बाद हो गया 16-17 साल की? हाँ, 16 साल के उतनी। उसके बाद जो पढ़ाई हो गई ना, तब वही रिवाज था? इंग्लैंड में था ही वो, तो उन दिनों तो वही रिवाज था। मगर जो भी पढ़ती थी ना लड़कियां मेरे, वो तो शादी के बाद भी फिर वे काफ़ी, मेरी सहेलियों ने, मेरी इसलिए भी हो गई जल्दी कि मेरी कज़न सिस्टर थी मेरे से बड़ी। अब ये है कि वो उसके जो आते थे ना वो शादी की बातें, फिर हम मिलाते हैं ना वो स्टार्स वगैरह, तो कोई बैठता था तो ये अच्छा लड़का है हाथ से, इस तरह हो जाता था। तो उसके बाद आप? नहीं, वैसे यूजुअली होता था छोटी एज में ही। 20 की बच्ची हो जाए तो बहुत हंगामा होता था। 15, 16, 17, 18 बस यही एज थी उन दिनों। तो ये जो आज लोग खींचते हैं उम्र को, कहते हैं सेटल हो जाएंगे, तब फिर न सेटल। अब तो ये सारा दुनिया ही पलट गई है, तो आप इसको बंद तो नहीं कर सकते ना। सेटल होना मतलब आपके घर भी होना चाहिए, पैसे भी 4 होने चाहिए। वो उन दिनों तो होता ही नहीं था। जितना हमारा विजन था उसके हिसाब से वही ओवरऑल सिचुएशन। मगर आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता है। अब वर्ल्ड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप बात कर रहे थे कि जो बेसिकली कश्मीर में जो रहते हैं कश्मीरी हैं और उनका डीएनए एक है, उनका कल्चर एक है, उनकी विरासत एक है। और वो उस वक्त भी जब भी कन्वर्शन हुआ है उनकी यही हालत। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी 1987 के इलेक्शन में। तो उसमें तो ये जो 87 था, बकौल सलाउद्दीन, ये उन्होंने कहा रिगिंग हो गई, तो उन्होंने खुद कहा मजगूर मानियो तिम। क्या मतलब? मजगूर। आप सलाउद्दीन से मिले थे? क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ वो हमारे हाइड आउट में आ गए 5 बजे, और पूरा शाम, पूरा खाना, पूरी रात 3 बजे तक हम बातें करते थे। मेरे हस्बैंड, मैं, सलाउद्दीन, उसके 10-12 आदमी। क्या कहते हैं, पूछ लीजिए उनसे कहिए क्या क्या पहना था वो तक मैं, क्योंकि मैं डायरी लिखती हूँ हर चीज। अच्छा, आप उन दिनों की बात कर रहे हैं जब आपको मिलिटेंट्स ने किडनैप किया? हाँ, तब की बात। ये 91 की बात? तब की बात कर रही हूँ। अच्छा। मैं 91 की बात कर रही हूँ। तब तो थे वो यही इंडिया में, कश्मीर में। उसके बाद तो फिर अब तो नहीं आते होंगे वो यहाँ, अब तो सवाल ही नहीं है शायद। वेरी नाइस पर्सन दैट वे, बातें करने में शाइस्ता। और उन्होंने कहा नहीं इंत बाशो सड़की हिंद खर पर क्या था वो मंजगोर के नहीं कहता, मंजगोर के नहीं कहता वो वर्ड, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव रिटन इट दैट वे इन द क्या था वो, आई कुडंट फॉलो दैट, बट वनो ना तम दोन क्या गो तम दोन गो ऐसे सुबह इथे कम बिहत ना हाइड आउटस मज खबर का जाए। दैट वाज उड़ी के पास कहीं। उड़ी के पास? और क्या, हम थोड़े यहाँ बैठे थे, हमको तो ले गए थे यहाँ से उठा के। नहीं, आप शुरू से बता दीजिए, आप किडनैप कैसे हुए? किडनैप हो गए जी, हम यहाँ थे अपने घर में। ये थी वैसे 4-5 बजे हम बाहर निकले। 5 अक्टूबर, ये सितंबर का था, 4 सितंबर। यहाँ पे बाग में बैठे थे, तो सर्वेंट भी था, गार्ड भी था हमारा। तो यहाँ बैठे थे, तो माय हस्बैंड गॉट वो कैंची है ना ऐसा प्रूनी वूनी करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा 1-2 प्लांट है, मैं ज़रा वो उसको टेक कर लेता। तो उन दिनों बहुत ही हालात ख़राब थे, 91 का था टाइम, तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब 91।
तो उस वक्त उन्होंने माय हस्बैंड वाज कटिंग सम शाख वाक ना गुलाब he was pruning a plant. हाँ प्रूनिंग वूनिंग कर रहे थे, तो मैं भी थी, मेरे भी हाथ में मिट्टी विट्टी थी, कुछ वो उनको हेल्प कर रहे थे। तो इतनी देर में कमोशन हो गया यहाँ, कमोशन इतना शोर हो गया, इतना शोर हो गया, लोग रास्ते में कुछ ज़बरदस्त ना, सो अनयूजुअल as if somebody had died, as if some calamity has happened outside the gate. थोड़ी देर में ये 5-8 आदमी 10 आदमी, वो तो मैंने देखा नहीं, हम एकदम माय हस्बैंड एंड माई सन अंदर आ गए। सर्वेंट बेचारे बाहर ही थे, कोई उधर था कोई उधर था, तो हम अंदर आ गए। तो वो कर लिया, क्योंकि हालात तो ठीक नहीं थे। हमने वो लैच वैच कर ली यहाँ जब अपने इस वाले गेट को, ये दरवाज़ा। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ भी लगा कि सेफ नहीं है, अब यहाँ नहीं। फिर छोटा कमरा है हमारा इसके अक्रॉस, वहाँ अंदर तो बाथरूम में चले गए हम, अंदर से कोरी। ये लोग सारे गए उस मकान में, वो वाला जो गेस्ट हाउस है अभी, वो हमारा आबाई, मतलब वही था पहले। आज में वारिया कोरमुत एडिशन, तो वो वहाँ चले गए, तो एक एक शीशा तोड़ा, एक एक खिड़की तोड़ी, कहाँ है इधर उधर। हमारे 2 सर्वेंट थे यहाँ, एक था रघुनाथ उसका नाम था, और दूसरा था अजीज़ा, वो भी बाहर था, बाग माली, वो भी बाग में। तो उनको गले में ऐसे करके पकड़ लिया और यहाँ पे गान रखा, बोलो कहाँ पर है ये तुम्हारे आग कच्ची युकाइटी म्योनी शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के तो वो थे ना प्रिंसिपल, तो NIT में। Yes. तो कहाँ है वो, कहाँ है? यहाँ भी तोड़ फोड़ किया, यहाँ भी ये दरवाजे फुट रहे, शीशे ठास ऐसे। मैं टू बी फ्रैंक विथ यू, सुन ना इस वक्त याद आता है ना, तो इट जिटर गिव्स मी जिटर। तो वो अंदर आ गए, ये तिशन क्रक उड़ गई थी, और बॉन या पड़ते वेंडलाइज किया काफ़ी, जितना कुछ डैमेज करना था उन्होंने या फेंक दिए, कागज़ थे, किताबें तोड़ दी, ये किताब सुट ये परान, तो मुक्सर वो पहुंच गए हमारे। और टू बी फ्रैंक विथ यू ऑनेस्टली, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो फिर मेरी सेंसेस खत्म हो गई। Obviously. मैं आई वॉज इन ए स्टूपर, आई वॉज सो स्टन्ड, सो ऑल द सेंसेस वॉज ओवर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मगर इतना मुझे कुछ याद है, किसी ने यहाँ पे मेरा यहाँ चुभ रहा है मुझे, गन वो था उसका नली यहाँ पे एक और नली मेरे इधर से थी। तो मेरे हस्बैंड को मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद वो घसीट के ले गए हमको, जब मिला ना, जब वो खुल गया दरवाज़ा, फुट रहे थे, तो हम खड़े थे, तो बस पकड़ के मुझे एक दो ने पकड़ा, तो डॉक्टर साहब को किसी एक ने पता ना पता लोग कहते वारे काम हिंदी में मिल्टन यहाँ पर स्कूटर था बाहर, ये नेबर कर खुद तक एम्बुलेंस यहाँ से वहाँ तक, उस थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पर था एम्बुलेंस। तो वहाँ से घसीट के उतार के, और उतनी देर में ठक ठक हवास मज़े करान, और एक और कुछ पीछे से आ रहा था, क्या आ रहा था, स्कूटर था क्या, मेरा तो बस मेरी सेंसेस मेरी बिल्कुल ही है। उसके बाद मैंने अपने को दोनों को, माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ वेयर समवेयर यहाँ मायसूमा के पास किसी के घर में, कुछ टाइम वकील होता है, बादशाह वकील तो क्या सोच करा पेपर इत पठन ओनखा लगित ऐसे फिर रहा था। तो हमारे सामने चाय थी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज टू सी माय हस्बैंड। तो उनके बाल ऐसे, तो कपड़े भी ये कितना डिवास्टेटिंग,
डिवास्टेटिंग सिचुएशन थी उस वक्त। तो मुझे धक्का लगा, मैंने कहा हम कहाँ हैं, मैं तो आई हैड लॉस्ट माई सेंसेस। उसके बाद फिर शुरू हो गया, पता नहीं फिर क्या पिया, कहाँ ले गया हमको उसी रात को, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर तीसरी जगह, एक ही रात में। बिकॉज दे मे हैव थॉट परहैप्स ये सिक्योरिटी फोर्सेस आर लुकिंग, यहाँ सब जगह देख रहे हैं, तो वो देख रहे थे कहाँ सेफ्टी है क्या है। उसके बाद शुरू हो गया 1.5 महीना उन्हीं के साथ। तो फिर कभी एक के घर में, कभी दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे। जब भी उनको लगता था यहाँ सेफ नहीं है, बैठते बैठते ही कहते थे उठना है यहाँ से, यहाँ ये सेफ नहीं है, चलो दूसरे। ऐसे हो गए 1.5 महीना, 45 डेज। 45 दिनों में क्या हो रहा था? ओबियसली वो किडनैपर थे, अब किडनैपर थे, लेकिन दोनों उनको भी इंसान डर थे। था वो, दैट इज हाउ वी कुड अंडरस्टैंड कि उनको भी डर था कि कोई दूसरी तंजीम हमको छीन के न ले जाए। अच्छा, दैट इज व्हाट एक ने कहा, एक दो ने। उनको सिक्योरिटी फोर्स का डर नहीं था, नहीं, उनको तो अपने ही राइवल्स का डर था। राइवल्स का। ये पार्टी कौन थी? ये वाली हिजबुल्लाह, ये वाली हिजबुल और हिजबुल मुजाहिदीन, देवर 5 ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, 5 ऑर्गेनाइजेशन का ये, अच्छा, जिन्होंने आपको किडनैप किया था। जिन्होंने, मतलब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमें हिजबुल्लाह ने उठाया यहाँ से, फिर हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर, पता नहीं क्या क्या, 5 ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उनकी क्योंकि हम कभी इस हाइड आउट में वो होता था हिजबुल्लाह का, फिर दूसरा होता था अल उमर का, फिर हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे अपने। मगर इनको भी डर लगा रहता था, कोई क्योंकि फूट गया ना 1-2 बार। आफ्टर ऑल यंग पीपल, हम भी ज़रा समझदार ही थे, वी कुड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, नॉयंसेस, वर्किंग तरीका, ये तो हमें पता था। माय हस्बैंड वाज, वो डायरेक्टर था वहाँ का, उनको पता था कि कैसे ये यंग पीपल सोचते हैं। मैं भी पॉलिटिक्स में थी, तो मुझे भी पता था इन बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, क्या करनी। तो 1.5 महीने में आपने तो किताब भी बाद में लिखी। हाँ, लिखी। लेकिन ये वो 1.5 महीने आप उसके बारे में जो इंटरेस्टिंग वाक़े हैं क्या? एक तो एवरी डे यूज्ड टू बी ए वाक़ा। कहाँ दो आसान, कोई ऐसा दिन नहीं था जब कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया होता था। एक जगह हम गए थे, इनको हमने कहा था कि कहीं जाना था इनको दवाई लेने, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी, तबीयत खराब हो गई थी। तो हमने इनको लिख के दिया था। तो उनको ये ख्याल था कि इसी के बीच में कुछ और तो नहीं लिखा है। 10 बार ही देखते थे, पढ़वाते थे किसी से कि कुछ तो नहीं है, कि कोई क्लू तो नहीं छोड़ा है, कुछ तो पता नहीं क्या। तो मगर धीरे धीरे पता चल गया इनको कि ये अच्छे ही हैं। कुछ थोड़ा सा रपो भी हो जाता है ना, ओबियसली होता है, तो काफ़ी हो जाता है जब बात कर। स्टॉकहोम सिंड्रोम भी होता है। हाँ, वो भी हो जाता है, दैट इज़ ट्रू। तो इस तरह वो धीरे धीरे वो कुछ बातें। एक दिन वो क्या हुआ, वो 1-2 थे, वो गए थे कहीं मोटरसाइकिल लेके। तो आगे जब चले गए तो वहाँ पे उन्होंने किसी और तंजीम ने पुल ही जला डाला था। अच्छा, तो ये बेचारे, इनको मालूम नहीं था, ये गिर गए उसमें। अच्छा। वहाँ से ऊपर से नीचे गिर गए। एक का तो बिल्कुल बर्बाद हो गया था, एक अच्छा था वो बेचारा, थोड़ा सा वो तो शायरी भी करता था, कुछ लिखता भी था शायद। तो वो भी जख्मी हो गया। 2 कि 3 आदमी थे उस स्कूटर पर, तीनों जख्मी, ऐसी जख्मी कि एक की तो ये जो बोन्स थी ना उनकी, उसकी तो टूट ही चुकी थी, ये जंग।
तो वो उसकी वो हालत, वो फिर ले आए चारपाई खंडा ताकपेट एक को उसमें लेके आ गए, वो तो दो ना बिल्कुल ऑल लैसरेटेड, यहाँ भी जख्म, यहाँ भी जख्म, यहाँ भी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको पता था कि डॉक्टर साहब ये मेडिकल डॉक्टर हैं। अच्छा, उनको ये तो ले ही आए उसी हाइड आउट में जहाँ रहते थे हम, तो ले आए उनको, वो टूटी फूटी वो चारपाई पर लेके आ गए, वो डाल दिया उसको। एक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, हमने सोचा ये दूसरे दिन उठेगा नहीं। तो मगर फिर इन्होंने ये सल्फानमाइड जो भी उनके पास दवाइयाँ ववाइयाँ थी, कुछ एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं था, कुछ थे काफ़ी, वैसलीन था, वो था। और वो अब उन डॉक्टर साहब ने कहा इसकी हड्डी टूट गई है यहाँ पे, अब तो एक चीज़ है कि एक लकड़ी का टुकड़ा हम उसको यहाँ पे रख लेंगे और उसके ऊपर फिर दवाइयाँ काफ़ी छिड़कें और उसको बैंडेज, वो किसी की चुन्नी ऐसे ओढ़ उसको भी किया, दूसरे को भी किया, मगर बच गए वो। और रात भर थे भगवान, वो उसके बाद वो रेपो हो गया उनको कि वहाँ से बिचौर ऐसी कराई इलाज, तो थोड़ा सा वो दूसरे दिन फिर वो खुलते थे। बाकी नहीं कि क्या करना है क्या, मगर ये कहते थे हमको डर है कि आपको कोई कुछ दूसरी तंजीम ले जाएगी, फिर वो अपने मुतालबे करेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो हम आपको गंवाना नहीं चाहते। आपको कभी मौका मिला वो जो जिन लोगों के घरों में वो आपको रखते थे, हाँ मिला उनसे है। मिलने का? आपको यूजुअली क्या होता है, जिनको जो अगवा हो जाते हैं वो कोई ना कोई ट्रेस पीछे छोड़ देते हैं ताकि हो सकता है कि जो हमारी तलाश में आए वो। नहीं, हमारी तलाश में तो थे वैसे ये लोग भी, ये मेरा बेटा और दूसरा बेटा भी, ये तो दिल्ली में थे, ये सेंटर से बात कर रहे थे कि कैसे छुड़ाया जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि मतलब इनको कोई छोड़ना तो ठीक है, तो कोई तकलीफ ना हो जाए इनको भी और लोगों को भी कुछ तबाही ना हो जाए, वो तो है। ये कह रहे थे तो इसलिए हमारी जान जाते थे वहाँ, हमारे दूसरे दिन आ जाती थी, वहाँ पर छापा पड़ता था। अच्छा, पड़ता था? हाँ पड़ता था, हर जगह दूसरे दिन, मगर उस दिन नहीं। अच्छा, जिस दिन हम चल मतलब चुके आपको उससे एहसास लगता हो कि हम ऐसे हाँ है पीछे, मतलब, वही कहते थे ना मिल्टन। तो और कई बार तो हमने एक ही दिन में 3 जगह हाइड आउट चेंज किए। हाँ हाइड आउट चेंज किए। और ये सलाउद्दीन साहब वो आ गया, कोई लड़का आया 11 बजे के करीब सवेरे हमारे यहाँ, उसका यहाँ तक लेदर बूट था, जैकेट थी लेदर की, वो गान नहीं था, वो पिस्टल था हाथ में, ऐसे ऐसे करके आ गया, अकेला आया वो सवेरे। और हमारे अपने भी थे 5-10 लड़के थे और घर वाले भी थे वहाँ पर। तो जब आ गया तो वो ऐसे कहता है, आपने सिर क्यों नहीं ढका है? अच्छा, इस्लाम में ये ममनू है। अच्छा, तो आप ये, मैंने कहा कि डॉक्टर जो है उसको ऑपरेशन करना होता है, तो वो कहाँ से ढकेगी हाथ वाथ। मैंने कहा मगर एक बात सुन के जाओ, मैंने कहा मरना है तो मरेंगे आप तो, मगर इसको सही ठीक से कहेंगे। वो उठ के चला गया। तो हमने कहा अच्छा चला गया, तो हमारे जो थे ना ये लड़के, उन्होंने कहा कि अच्छा इसको हो गया, वो बड़े खुश हो गए, आपने इसको अच्छा सुनाया, इसको अक्ल आ गई ठिकाने। अब आप आपस में बात कर रहे तो ठीक ही था सर। 5 बजे जी सलाउद्दीन उसके साथ 10-12 आदमी बड़े बड़े गान लेके AK-47 इतने लंबे, और उसका पहना था शलवार कमीज सफ़ेद, ऊपर से वो कोटी सलमा सितारे वाली कोटी और अफ़गान टोपी, उसमें भी सलमा सितारा, काफ़ी चमकान। वो सीधा लग रहा था कि लीडर है। तो जब बैठ गए, वो बैठे नहीं नॉर्मल से, ऐसे घुटनों पे बैठ के गान थे भी कितपट सारी खड़ा कर गान। हम यहाँ पे बैठे थे, सारे ऐसे इर्द गिर्द बैठ गए हमको डराने के लिए।
उस वक्त मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा उस लड़के ने पता नहीं क्या क्या बोला है, उसने इधर उधर का बोला होगा, ये तो अब आ गए हैं पूरी तरह से आए हैं तो हमको मारने आए। और बिल्कुल लगा भी, मेरे हस्बैंड का मुंह तो बिल्कुल ऐसा पेल हो गया, मेरे अंदर की ठक 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 हो रहा था। मैंने कहा कहीं से गोली चल रही, गोलियां कहीं से नहीं चल रही, मेरे अंदर का इंसान कोता अंदर ठास ठास गसा। फिर बैठ गए ये जी इस तरह। तो उन्होंने कहा ये हमारे चंगेज खान है। अच्छा। हाँ, उसकी तरफ। अच्छा। पता नहीं कैसे मैंने कहा लग ही रहे हैं ये चंगेज खान। अच्छा। इनका जो अटायर है ये तो लग रहे हैं चंगेज खान है। इतना ही मैंने कहा, ये मेरा कहना था तो हंस गए सारे, खुश हो गए। उसके बाद तो फिर उसी ने उस वक़्त बोला था सलाउद्दीन साहब ने कश्मीरी में, ओशन मंजगरी की नहीं, मंजगरी की क्या था ती बोनो, तो हम ऐरे गहरे नहीं है। तो फिर बोला कि किस तरह रिगिंग हो गई, क्या कर लिया। अच्छा, आपने उनसे खुद सुना? वो खुद ही था वहां पर, और क्या बोला? तो क्या बोला? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यही बोला ना, हम ऐसे अरे गहरे नहीं थे, हमने इलेक्शन लड़ा और उसमें उन्होंने हमारी आ रही थी माफ में सीटें, वो अगर सुनेंगे भी ये मेरी बात तो याद आएगा उनको वो दिन जब उन्हीं के, उसके बाद उनके मकाई सच शीर चाय, नमक वाली चाय उनके लिए भी आ गई उसी घर में। हमने भी वही पिया। उस दिन मैंने अच्छी तरह खाना खाया, पता नहीं कितने दिनों के बाद। नहीं देते थे खाना, ऐसी बात नहीं थी। अब होता था ना, अब का फटता पहले मन क्या ही खाना, वो दौर ही अलग था। दौर ही अलग। और एक आप कहते हैं ना वहाँ लोगों ने क्या बोला, एक दिन मैं वहाँ किसी हाइडअप में गए थे हम, तो वो एक औरत आ गई, नहीं 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 आपके बाल बहुत ख़राब हो गए, आप नहीं नहीं ये मोट वो कर शान आए थे। तो मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा ही लगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है, मैं हो भी गए पता नहीं कितने दिन, तो मुझे नहाना तो था ही। तो उसने कहा ये अच्छा नाज अच्छे मोट वोट गर्म आप दिखो सास। वो जब मैं अंदर जाने लगी बाथरूम में, वो मेरे धक्का मार के अंदर चली गई। मैंने कहा मुझे मैं कर लूँगी। ना 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 शासन सियासत क्या था, नहीं 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 मैं आऊँगी, आपको मैं पानी वानी डाल दूँगी, तो आप अकेली क्या करोगी। मेरे पीछे पीछे थे ना ये मिल्टन, वो बाहर थे, दरवाज़ा बंद कर लिया इसने। नाज सुबह थी तो ये भी कहते कर पानी छः निकाल। मैंने कहा मैं मेरी आदत है तो, मगर उसने मुझे माना नहीं उसने। उसके बाद जब आ गई तो मुझे कान में कहती है उसके दामाद को, उसके बेटे को ख़त्म किया था इन्होंने। अच्छा। वो रोते 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 इतना किया उसने, मुझे प्यार किया, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। शी वॉज इन ए पेन, शी वॉज इतना पेन हो था उसको कि वो मुझसे लिपट गई तो कहती खदा थे न वार तो नीरू ठीक पट नीरू तो सख्त वो तुम सख्त दोपनी मोक्ष में बहुत कुछ बोला। ये बहुत तबाही हो गई थी, बहुत ही खराबी हो गई थी। क्या उस इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज, इट वॉज नॉट, कुछ भी नहीं था, पागलपना था। और ब्रेन वॉश इतना ब्रेन वॉश कि कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं पता था। एक जगह हम चले गए, हमको देखे वो आते ही उन्होंने बेचारों ने बहुत बड़ा समावार, काफ़ी 10-12 आदमी हम थे, मतलब सारे मिला के बैठे। तो यंग आदमी इसकी तरह यंग, उसने समावार लिया तो बैठा वो बेमत राओ चाय सानी उस पर सा, और रोटी वोटी कुछ थी, तेल वेल सच और। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों गए। मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर साहब ने पूछा
क्या तुम क्या चाहते हो? उसने कहा आज़ादी है। ऐसे बोला उसने, आज़ादी है। उसने सोचा होगा ये भी उनके साथ है, ये भी मिलिटेंटी है, आज़ादी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा डोन छुआ ये थे, डोन कुल ये कुछ छो निवान छुआ का नाज तो छुआ ठेक छुआ दिवान नाज कुछ छो वाला उसे पाने वाला डोन। अच्छा ये छो दान वानी छो तो ये कुछ छो करान। अच्छा बे क्या अगर स यक पारुन तो दिवान छे पर ना आजकल मच पारान ना बहुत पारान मे त्रो तो तितने हुआ ना खोचान कि हम चल नीर कोई इधर उधर की बात हो जाएगी तो ये फिर हमको ही मारेंगे। ये तो उसने फिर कहा तो फिर आज़ादी क्या है? वो इतना सीधा और इतना अच्छा लड़का था। उसने कहा अच्छा पता ही मैं शुवाना तो वहाँ क्या करो आज क्या पता आज़ादी क्या आज ये मुझे वना आज़ादी तो आज नहीं पता, नो क्लू। But did you ever knew that why you were kidnapped? आपने उनसे पूछा आप सॉफ्ट टारगेट था हिंदू था कहीं तम वन पत खुले वारिया तम वारिया अशनिश्ट ना त्यो वन तम वो कहते थे हमको इस्लाम लाना है और ये सरहदें ठीक करनी है कहता है मगर इतनी यहाँ ये द्राई की जाए ये कहा तिमो सो कौन तुम चलो तो हम आ रहे हैं तो पक्यू छुपा कहाँ पत पत तीतो सो कौन लेकिन जो उस वक्त अखबारों में छप रहा था उनके क्लेम्स के हवाले से वो ये था कि हमारा वो एक्सचेंज करना चाहते थे। एक्सचेंज तो हमारे इवज में तो था वही वो गुगु सोबोस ये आख बटमालनुक सुक न्यूमुत बेशक तमिस सत वारिया नियमित दो बाजन तिम यथान तिम त्रावनावन इन एक्सचेंज हाँ दैट वाज द रीजन। फिर 1.5 महीने के बाद छोड़ा तो फिर आप कैसे सलामत घर वापस आ गए? सलाउद्दीन तो चला गया फिर उस दिन तो वो पूरा रात 3 बजे तक था हमारे साथ। वो भी सुनेंगे ये उनको मैं सलाम भी भेज रही हूँ सलाउद्दीन को और कहूँगी ये भी कहूँगी वापस आ जाओ अपना नॉर्मल ज़िंदगी जियो। ये कौन सी ज़िंदगी है? ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ एज ए सिस्टर एज ए कम से कम उनको तो मैंने देखा। ये कौन सी ज़िंदगी? अगर प्रोग्रेस करनी है तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे चलाओ। जहाँ दुनिया भर के लोग चांद पर चढ़ गए बड़े बड़े कारनामे कर AI आ गया है उसको छोड़ के हम ये क्या कर रहे हैं? ये बर्बादी नहीं तो और है क्या? इससे कौन सा मसला तय हो जाएगा? होगा कोई? आप बताइए। नहीं मैंने भी ये जिस दौर का तज़किरा आप कर रहे थे मैं उस दौर से गुजरा भी हूँ। आपको भी किडनैप किया? मुझे नहीं किया। नहीं एक बात मुझे पता है कि लिखने वाले भी कोई काम नहीं लिखते थे तो आपने भी हमारा छापा होगा और आज ये अंगूठा काट लिया आज ये हाथ काट लिया करते क्या? बिल्कुल मतलब नहीं उनको हमने कहा हमारे बच्चे बड़े परेशान हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार हमारी बहनें भाई माँ बाप मेरी मदर भी थी तब तक। तो मैंने कहा ये तो गलत आपने। उसने कहा धमकाने के लिए तो नहीं तो कहाँ मानते हैं ये गवर्नमेंट। फिर आप कहाँ से फ्री हो गए? रिलीज फ्री हम हो गए ददबुग था उस गांव का नाम ददबुग। ददबुग कहाँ है? ददबुग है उड़ी और उड़ी से पहले ही थोड़ा सा। अच्छा ददबुग गांव तो पहाड़ पे। तो नेगोशिएटेड अरेंजमेंट था? कौन नेगोशिएशन होगी कुछ? नहीं कुछ नहीं हो गई। फिर ये अल्लाह की भगवान की मेहरबानी और उस वो जो है ऊपर शिवा उसकी दया से इतना स्मूथ हो गया। और उन्होंने कहा कि ये दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नॉट अ सिंगल बुलेट हैज बीन फायर्ड ऑन दिस साइड आइदर साइड। ये तो करिश्मा था खुदा का परमात्मा का। इतना करिश्मा था कि उसमें
there was no human touch. I mean it and I say it again and again. It was all done by God Almighty. Honestly. मैं अब आपको बता दूंगी वो, उसके बाद हम, मुझे लगता है कि कहानी पूरी हो जाएगी. जब वो लास्ट दिन आ गया, सवेरे कोई मेरे ख्याल में 4:45 के, अर्ली मॉर्निंग में होता है ना वो, थोड़ा थोड़ा वो गाश ज़रा रोशनी आ जाती है थोड़ी थोड़ी. तो अब तो हमें आदत ही पड़ गई थी. मेरे ऊपर शलवार कमीज पहना होता था अंदर से, ऊपर से फिरन, क्योंकि पहाड़ों पे तो सर्दी भी होती थी, बहुत ठंडी होती थी. किसी बेचारी ने मुझे अच्छी, किसी घर में गए थे, उसने कहा नहीं नहीं आपको ठंड लगती होगी, कोई फिरन दिया था मुझे, अच्छा तिले वाला, अच्छा फिरन था. तो उसने कहा आप ये पहन लो तो थोड़ी सी गर्मी हो जाए रहेगी आपको. मैंने पहन लिया, वही फिरन था मेरे पहना हुआ. वो मैं निकलती थी ऊपर से तो ऐसे सोती थी बिस्तरे में. सवेरे आ जाती है दरवाजे पर कोई, ठक 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 ठक, वच जल्द वच कार यहस गव ये छापस पे छाप. ये गुजरानी कोई थी, गुजर कोठे वोठे उधर, और कुछ मकान थे, कुछ थे. ये जो है ना हमारा ये बेग, जो मुजफ्फर बेग, हाँ मुजफ्फर हुसैन बेग, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उसकी बहन ददबूग में, अच्छा उसकी बहन, वो मुझे पता चला ना बाद में. अच्छा. जब मैं MLA बन गई तो उसके बाद उसने कहा आप उधर थे. उसने नहीं कहा, किसी ने मुझे कहा कि आप, शायद उसी ने मुझे बोला, तो आप हम फॉलो करते थे कहाँ, PDP में जो थे. तो उसके बाद वहाँ किसी ने कहा, तो मगर ये जो आए थे ना, ये आर्मी, बहुत आर्मी थी. अब ये होता है गांव में तो यहाँ हैमलेट एक, थोड़ा आगे चल के यहाँ 2-4 घर, फिर थोड़ा यहाँ भी 2-4, इन्होंने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया था. वहाँ से कोई गुंजाइश नहीं थी कहीं से भागने की, कहीं से निकलने की. हमें जहाँ जहाँ से दरे थे उन्होंने वो कवर कर लिए थे. और नीचे जहाँ थे हम पहाड़ी पर ही थे, मतलब यहाँ से तो यहाँ मैदान नीचे था, तो मैदान में लोग उन्होंने आना शुरू किया था, चापे पड़ रहे थे. तो आप मर्द लोग निकलो, वो क्रैकडाउन हो गया था. तो अब ये आ गया था जे आर्मी हज आए, अच्छा सुनन खत्म करे तो नीर ये थी इस घर से. अच्छा. तो अशज मारन. अब हमारा क्या था, हम भी उनके साथ ही थे. मैंने वो फिरन डाल दिया तो उठ गई, मैं बूट पहना तो निकल गए. अच्छा. मगर एक दिन मैं आपको ये बताऊं, उस दिन मेरे टांगे ही नहीं चल रही थी. ऐसे मुझे लगा कि मेरे जैसे पाँव में किसी ने ना वो चक्की डाल दी है, चलना ही मुश्किल हो गया मुझे. एक तरह से वो सो गया गला, एक तरफ से कान भी नहीं सुन रहे थे. पता नहीं क्या, अंधेरा सा छा गया कि अब यहाँ गोलियाँ चलेंगी या पता नहीं क्या होगा. तो बाहर आ गए जी, बाहर. इन्होंने, अब ये सारे 8-10 आदमी थे ये, और एक अमीर होता था इनके साथ. जो भी छोटा ग्रुप होता था तो अमीर. वहाँ लीडर वो, उसने कहा, वो कहने लगे लगाओ ये मशीन गन थे 2 इनके पास, और ये जैकेट पहन के सब ने जैकेट पहना था. यहाँ 2 ग्रेनेड होते थे उनके पास, एम्यूनिशन, चाकू, इधर से गोलियाँ, ज़्यादा गोलियाँ आसान एट ए टाइम. दे यूज टू कीप ऑल. आज हम कम ही गमस गोल थो ये भरू सो, देन वो भरते थे. अब हमें पता ही था इनके पास बहुत सारा असला है. उन 2 मशीन गन भी थे, कलाशनिकोव थे, काफ़ी एम्यूनिशन भी था, जैकेट्स थे सबके. तो पहनते तो जी यहाँ से पत्थर, बड़ा सा पत्थर ला के, एक पर इधर से मशीन गन लगाया, एक पर इधर से, और बीच में ये, और पोजीशन ले ली उन्होंने. फिर मेरे हस्बैंड ने उनको, किसको, जो अमीर था,
अमीर और उसके साथ एक और था, ज़रा रीज़नेबल लग रहा था, तो उसको कहा कि इन गांव वालों ने क्या किया है तुम्हारा, तुम्हारी एक भी बुलेट तुम यहाँ से दागोगे तो हज़ारों ऊपर से आ जाएंगी आ जाएंगी। automatically। अब ये तुमको नहीं लगेंगी, हमको भी नहीं लगेंगी शायद एकदम, मगर ये गांव वाले खाम खा मारंतिम बिचारे, जिन्होंने हमको खाना खिलाया, जिन्होंने हमको दूध पिलाया, एक रात पहले ही ये था, उन्होंने हमारे कपड़े भी धोए थे बेचारों ने ना, वहाँ की लड़कियों ने, वो गुड्डी थी एक, उसका नाम गुड्डी, आ जाए इनके कपड़े धो ले, तो इसलिए पता था थोड़ा सा आसान जान पहचान। तो उसने ये किया था और पता नहीं क्या खाया था, और मकाई चोट खाई थी, क्या कुछ खाया था, जो जो अब हुआ था हमारे साथ उससे पहले रात को, तो वो हमने गिनाए डॉक्टर साहब ने। कुछ लगा मुझे कि ये जो 5-8 आदमी हैं थोड़े से पिघल गए वो हमारे कहने से, दे वर नॉट श्योर व्हाट टू डू, मगर वो उस अमीर को देख रहे थे, उसकी आंखें मैंने देखा लाल लाल, और इधर से भी, तो उसकी आंखें तो लाल थी काफ़ी, और लग रहा था कि दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू आवर आर्गूमेंट, ही वॉज डिटरमिन्ड। तो हमने, अब मेरे हस्बैंड ने मुझे जर्मन में कहा कि डू समथिंग टू हिम नाउ, डू समथिंग, कुछ तो कर लो इसको, अब इसको ना, मतलब ये जो, मैंने उसको कहा पीर साहब अगर एक गोली भी आप चलाओगे, मैंने भी वही डायलॉग जो नरेशन वो कर रहे थे, और वो सही भी था, सही भी था, क्योंकि एक घर तो मैंने कहा ना ये हैमलेट्स और पूरा कॉर्डन ऑफ किया था, अगर यहाँ से एक गोली भी चलती वहाँ से 100 चलती, इतने थे, क्योंकि हम देखते थे जंगलों से, मैं देखती थी ऐसे देखती थी, सिर्फ बूट और मोजे दिखाई देते थे आर्मी के, पूरा कवर किया था उन्होंने, वो अपनी जान को बचाने के लिए एक के बदले पता नहीं कितने कर लेते exactly। और उसमें खाम खा के लोग मर जाते। वो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा पीर साहब, उसको मैं इज़्ज़त बहुत करती थी, पीर साहब को इज़्ज़त इसलिए भी करती थी, बेचारा उसको टेंशन भी बहुत होता था, और मैं इन लड़कों को कहती थी पीर साहब उसके तो मठ रस दे तो सब बेचारे थकावट गाँव, तो वो बड़ा खुश हो जाता था मेरे ये कहने से, कहता था कि ये तो इनको वो थोद दी वो मोड़ भी बेचारे थोक तो उसको लगता था तो मैं लीडर हूँ तो ये मेरा एहतराम करते, ऐसा कुछ था, साइकोलॉजिकली मैं करती भी थी, और समटाइम्स आई यूज टू फील फॉर हिम एंड अदर्स ऑल्सो, वेरी बैड फीलिंग होती थी। तो उसके बाद वो मैंने कहा गुडी ने ऐसे खिलाया, वो उनकी मम्मी ने ऐसे खिलाया, वो जो बुज़ुर्ग थे हमारे भट्ट साहब के कोई बुला रहा था लाला लाला, तो उस बेचारे ने क्या किया, उनकी एज है ये मरने की, तो ये मत करो तुम ऐसे, एक करोगे तो ये उसके बाद मैंने कहा हाँ अगर अब तुमको करना ही है, वो मैं वही कहती हूँ ना, ये इसमें खुदा का हाथ बिल्कुल 100% था। फिर मैंने उसको कहा क्यों किया, मैंने अपना ऐसे किया, मैंने कहा पीर साहब मैं आपको एक गोली नहीं चलाने दूंगी, पहली गोली मैं खाऊंगी, मुझे मारो तुम, तो उसके बाद जो करना है तो करो। मैंने उसको कहा, इतना मेरा कहना था, तो वो तो ऐसे गिर गया नीचे मेरे यहाँ पे, दीदी दीदी बाजी 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 बाजी, ऐसे उसने रोया। अच्छा, ऐसे रोया तो वो सारे बाकी तो ऑलमोस्ट रेडी थे। मैंने कहा ये गलत हो जाएगा, जिस गांव वालों ने हमको इतना प्यार लाड और इतना अच्छी तरह रखा, कपड़े धोए, खाना खिलाया, उनको इस तरह सिला देना ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बहुत गलत। तो फिर कहने लगे क्या करें क्या करें। मैंने कहा चलो अंदर जाएंगे, आप सारे उठो या अपने गान वान उठा के, वहीं पर था कोई ये किसी का घर थोड़ा आगे चल के, उधर हम उन्हें धक्का मारा, वो बेचारे बेहरान हो गए, आ गई बला इधर से तो नीचे से तो
वो एक बला है तो ये कहाँ से आ गई दूसरी बला। तो वहाँ की वो जो लेडी थी, ये नाज गाँव नहीं जान, है ना, उसका मुंह ऐसे हो गया जैसे उसका सारा खून पूरा नीचे आ गया, वो बिल्कुल पेल पड़ गई। वो सिर्फ ये कहती है कि ये तो मेरे घर में तो ये तबाही आ गई, क्योंकि वहाँ से नीचे से तो कॉर्डनिंग हो रही थी, कॉर्डन ऑफ हो गया था सारा एरिया। ऊपर से हम उसके घर में आ रहे हैं ये गनमैन लेके, है ना, ये मेरे हमारे ये तो तूफान है। उनको तो उस बेचारी ऑलमोस्ट फेंट हो गई। तो उसने कहा, फिर हमने कहा कोई बात नहीं है, हम निकल जाएंगे। उसको दिलासा दिया मेरे हस्बैंड ने, उसके हस्बैंड को, तो कोई फिक्र की बात नहीं, आपको कुछ नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा आप। उन्होंने बहुत हिम्मत की उस वक्त, बहुत दिखाई। तो उसने कहा आख चाय का चाहिए, बेचंगरा कान चाय। उस वक़्त तक तो 8 साढ़े 8 बज गए थे। मेरी उबल रही है आख चाय, क्या पता अच्छो बांध तो था भी वही। मैंने कहा ना ये खुदा ही करता है सब। एक एक कतरा हमने एक एक घूंट पी लिया। और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको कर लिया कि एक बड़ा थैला ले आओ, उसमें हम सारे ये हथियार डाल देंगे। उसको गांड वांड करके हमने वो दरिया पीछे चल रहा था, जो एक गिरे, हमने कहा वहाँ डाल दो और तुम लोग नीचे उतर जाओ, मिल लो लोगों के साथ। और वहाँ उनके वो कंगे करते थे, कुछ करते थे। हमने कहा बाल बिल्कुल गांव वालों की तरह, और फिरन 1-2 टंगे हुए थे वहाँ। तो कहा एक ये फिरन पहन लो, इस पीर को कहा और दूसरे को भी कहा। तो सारे आ गए अंदर। तो हमने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों के साथ मिल जाओ। तो ये गनमन इधर ही छोड़ दो। और हमने हाथ उठाए। अब डॉक्टर साहब ने कहा हम भी तो मिल्टन जैसे ही बन गए। उनकी इतनी दाढ़ी थी यहाँ तक। अच्छा, उनकी इतनी दाढ़ी थी, क्योंकि 1.5 महीना हो गया था, शेव तो किया नहीं था। तो उनका तो पूरे हो गए थे, वो पूरे मिल्टन जैसे लग रहे थे। तो बाहर निकल गए। तो फिर एक वो आ गए। हमने कहा आप शायद हम ही को ढूंढ रहे हो। उन्होंने हमारे इर्द गिर्द घेराव लगाया और फोटो उठाया। तो देखने लगे तो बस डांस किया उनका भी। कहाँ गए? हमने कहा वो भाग गए। और भाग तो गए थे वो। ये हमारी ना एक इधर से गया ना एक उधर से गए। और ये सारा किया है अल्लाह ताला ने और परमात्मा ने और शिवा ने। कश्मीरी शिवा जो है कश्मीर का, उसने बचाया हमको। तो फिर उसके बाद आप? हाँ, फिर हेलीकॉप्टर था। उन्होंने मंगाया था हेलीकॉप्टर में सीधा हम इधर आ गए, यहाँ गवर्नर के यहाँ, इधर चश्मे शाही कृष्ण राव। हाँ, गवर्नर के घर में रहे रात को पूरी तरह से। उसने कहा हमने कहा अब हम ज़्यादा देर यहाँ श्रीनगर में नहीं रहेंगे, हमको अक्टूबर था ना। तो हमने कहा अब हमारे बच्चे सारे रिश्तेदार वो बहुत परेशान है, तो हम जाएंगे। तो फिर दूसरे दिन चले गए थे। खेमलता जी, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब मेरे मिल्टन सी उभरी, अचानक उभरी, थोड़ा लग रहा था, लेकिन इस स्केल उसकी पता नहीं थी। नहीं, इतना बिल्कुल नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब वो सिचुएशन आ गई, वो माइग्रेशन हो गई। उस पर डिबेट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम डिबेट मोड में नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने फैसला किया कि वो कश्मीर से जाएंगे, तो आपको किसने पीछे रखा? मुझे पीछे रखा अपने अंदर के इंसान ने अंदर की खेमलता। हाँ, अंदर की खेमलता ने। और उसके अलावा मैंने कहा कि सभी जो होना होगा तो होगा अपने घर में होगा। If I am believing in God, if God is there, which is, तो फिर इधर हूँ या उधर हूँ, जब जिसको मरना है वो मरेगा ही, चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो या कहीं हो, किसी भी बहाने से।
تو اس لیے I was of this opinion that we don't have to go anywhere, we'll stay here. And we stayed after kidnapping also. Although there were so many of our friends, well-wishers, relatives, یہ پاگل ہو گئے ہیں, ادھر آ گئے واپس. کیوں آ رہے ہیں؟ مرنا ہے. ابھی اس بار تو چھوڑ دیا, اب کون چھوڑے گا؟ ہم نے کہا جو ہوگا سو ہوگا. اب تو ہم مر کے واپس آ گئے, اور اس اللہ تعالیٰ اور پرماتما کو کچھ ہم سے ہے کوئی امید, ہم آ کے کریں گے پھر بھی وہی کام اپنے گھر سے. That is what we are doing, and with God's grace, with really grace of God and Shiva, کہ بچے بھی آ گئے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو they are also working on the same lines to deliver something, to take out the people of our state from that morass, to give them proper future, give salah, اور کیا چاہیے, to give them good. یہ ان کے پاس جو ہے, جو میرے پاس تھا اور ہے بھی, جتنا میں جہاں تک زندہ ہوں, میں سکھنے کلمے قدمے اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں بیٹھ کے بھی, اور جتنا باقی ہے اس کی دیا سے, اس کی مرضی سے, وہ بھی جب تک رکھ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا. جب آپ ہیلی کاپٹر سے سری نگر لایا گیا, گورنر صاحب تو گریش چندر صاحب تھے. اچھا, تب گریش چندر سکسینہ تھے. ہاں, سکسینہ صاحب تھے. ان کے گھر میں رہے نا, مطلب ان کے آفیشیل ریزیڈنس میں وہاں رہے ہم. اور انہوں نے کہا آپ 2 دن 4 دن جتنے مرضی ہے بیٹھو. ہم نے کہا اتنا تو ہم باہر ہی رہے, اور ہمارے بچے بھی ترس رہے ہیں, ہمارے بھائی بہنیں بھی, سبھی لوگ بہت ہی پریشان ہوئے ہماری وجہ سے. اب تو ہمیں جانا چاہیے دلی, ان کا بھی منہ دیکھنا, وہ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی 4 باتیں کریں گے تو we will feel better, and those people will also be relieved. تو پھر آپ دلی چلے گئے دوسرے دن؟ ہاں, دوسرے دن. تو پھر کتنے ٹائم دوسرے دن کی دوسرے ہی دن گئے. پھر وہاں دلی میں 5-6 دن رہے. اچھا, 5-6 دن رہے؟ 2-4 دن رہے, نہیں زیادہ نہیں رہے. اس کے بعد ہم پونا گئے. وہاں میرا بڑا بیٹا تھا, وہیں گئے. تو پھر جس کو ملنے آنا تھا وہیں آ گئے ملنے. مگر دلی میں تو موسٹ آف دا پیپل دے میٹ اس. سبھی شاہ صاحب بھی آئے تھے, اور جی ایم شاہ, یہ دلاور صاحب تھے, جو بھی وہاں دلی میں بیچارے رہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی وہ ملنے آئے. بہت سا, ہاں ملنے آئے. ٹھاکر صاحب آئے. ٹھاکر صاحب کے ساتھ اور بھی کوئی دیوی داس ٹھاکر, اور بھی بہت سارے تھے. اب یاد نہیں ہے مجھے. بہت دن بھر تانتا رہا وہاں, 1-2 دن. اس کے بعد ہم پھر پونا چلے گئے. پھر وہاں کتنے ٹائم رہے؟ وہاں 2 مہینے رہے. 2-3 مہینے ونٹر کے رہے نا. اکتوبر تھا, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبروری بھی, تو مارچ میں آ گئے. پھر واپس آ گئے. پھر واپس آ گئے. کس نے نہیں روکا؟ روکا کیا, ہم آ گئے گھر. تو گھر روکا کیوں نہیں روکا, ہم گئے تھے. یہاں چیف وہ سیکریٹری تھے. ہاں, چیف سیکریٹری کون تھے یاد ہے آپ کو؟ ایک تو پہلے غلام محمد امبتک. اچھا, امبتک, یس امبتک. ان کو تو اسی نام سے پہچان ہوتی ہے. صحیح. انہوں نے ہم کو بہت منع کیا, نہیں جاؤ. ہم تو 91 میں گئے تھے. پھر ہم 91 92 آ گیا تھا نا وہاں دلی میں. تو ان کو 92 میں بولا تھا کہ 93 میں ہم آ رہے ہیں واپس. مگر جب نہیں آنے دیا, انہوں نے بالکل منع کیا. انہوں نے کہاں جائیں گے, کیسے جائیں گے, مشکل ہو جائے گی, گورنمنٹ کو بھی مشکل ہو جائے گی, آپ کو یہ رکھنا, مطلب سیکیورٹی دینا, وہ یہ. اس نے بہت ہی کیا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ تو کبھی نہیں جانے دیں گے, ان کو کھلی چھوٹ ہے اس وقت, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. یہ بھی تو ہمیں ملٹن ٹو نے بھی کہا تھا. انہوں نے کہا یہ مز دیوان ایسے آرٹ نون, ہمارا نام دیتے ہیں تو ہم کو دیتے ہیں یہ تھوڑا سا, اور باقی پان کریں.
कई उनकी नौकरियां लगी थी अंडर ये जी क्या है वो जीपी क्या अंडर गन पॉइंट। अच्छा, तो ऑर्डर है जी, इसको भी ऑर्डर है, उसको भी ऑर्डर, मेरे भाई को भी है, बहुत सारे हमें मिले उनको अंडर गन पॉइंट, यूजीसी, अच्छा, यूजीपी, बहुत सारे ऑर्डर देखे हमने। तो किस तहत आपको नौकरी मिली कि क्लास 4 इसको ये यूजीपी, पहले हमें यूजीपी समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है, तो कहने लगे ये अंडर गन पॉइंट है। तो बयाने में आप फिर वापस आ गए? बयान 93 में। 93 में आ गए वापस। तो जब शाह साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई तब उसके बाद आप फिर हमेशा कांग्रेस के साथ रहे? नहीं, कांग्रेस तो मैंने 2000 में ज्वाइन किया। हाँ। तो तब तक आप एएनसी के साथ थे? एएनसी के साथ थे। और एएनसी का भी कमाल है। हाँ। ये तो जब किडनैप हुए थे ना, उन दिनों तो निकलने का तो सवाल ही नहीं था, कैसे निकलते। फिर यहाँ एक दिन हम यहाँ जब आए 93 में, तो यहाँ वो दीवार टूट गए थे काफ़ी, तो हमने वो मंगाई थी ईंटें। तो हमारा गेट छोटा था, वो ईंटें बाहर फेंकनी पड़ी सड़क पे। उधर से शाह साहब आ गए, उनको पता था, वो हमें मिले थे दिल्ली एयरपोर्ट में। तो हमने कहा आप कहाँ हो, आप कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं कश्मीर से आ गया हूँ, तो वापस जा रहा हूँ 2-3 दिन में। यहाँ आने के बाद हमने 1 हफ्ता तो लग ही गया होगा। वो ईंटें आ गई थी तो सड़क पे थी, तो खुला था दरवाज़ा, मैं वहाँ खड़ी थी और मेरे हस्बैंड भी आते जाते थे, और हमने लगाए थे वो मज़दूर भी और अपने लड़के भी थे यहाँ अंदर के। तो हम अंदर ला रहे थे वो सामान ना, ईंटें। उधर से वो आ गया शाह साहब, वो बेचारे रोए थे शाह साहब जब हमसे मिले थे दिल्ली, और दिलावर साहब वो रोए थे जब मिलने आए थे ना, कि बच के निकल गए। तो बहुत ही वो इमोशनल हो गए थे सारे, जितने भी हमारे कोलीग थे, काफ़ी आए थे। उसके बाद जी यहाँ उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने मीटिंग रखी है अपने घर में। 93 में कि 93 ही था, उसी साल आए थे कि दूसरे साल आए थे, क्योंकि हम तो मार्च में आए थे। 93 नहीं 94 में आए थे वो यहाँ, जब हम वो कर रहे थे ना, वो मरम्मत करा रहे थे दीवार का। तो फिर हम गए उनके घर में, उन्होंने ही गाड़ी भेजी थी, मेरे पास था ही नहीं कुछ उस वक़्त। तो फिर आ गए थे, तो फिर गए वहाँ भी यही ना, अपनी पार्टी को चलाना है, लोगों के पास जाना है उनकी प्रॉब्लम से। और लोगों को थी मुश्किलातें बहुत, और थोड़ा सा लग रहा था कि मिलिटेंसी तो थी तब भी बहुत, तब भी थी, और 2000 तक थी, 2006 तक भी थी ना, काफ़ी चलता था। अब ज़रा आके थोड़ा सा ठीक हो गया। उसके बाद बहुत सारे मिलिटेंट रास्ते में मिले थे हमको, तो उनको ओवरऑल ठीक ही था हमारे साथ, तो इसलिए वो डर तो ख़त्म हो गया था। आपको लग रहा है कि मतलब जो सरकार की कोशिशें रही हैं बहुत पहले से कि ये जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हो गए इनको वापस लाना है, उसमें पॉसिबिलिटी है या ये सिर्फ नारा है? एक बात आपने देखा होगा इस बार, जो जिस जगह का हो उसको वो अरमान रहता है। ये नहीं है कि यहाँ के लोग भी जो हैं दे आर ऑल्सो नॉट स्टेइंग पुट इन वन प्लेस, वो भी जाते हैं बीच, कहाँ नहीं जाते हैं। मतलब जो भी यहाँ के हैं, आप कल को आपको दिल्ली जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा, चेन्नई जाना होगा, आपको कोई डर है? नहीं। ये डर जब खत्म होगा देन इट इज़ ए इरेलेवेंट क्वेश्चन।
उनको भी ये डर निकालना है, वो कौन, मेरे बच्चे कौन से यहाँ पे बैठे हैं 24 घंटा, कभी बम्बे, कभी कहीं काम यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी। ये डर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ वो यहाँ पे रहें, उनके बच्चे कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई वो पुराने टाइप का जो हमारा वो था ना ख्याल कि सेटलमेंट, व्हाट इज सेटलमेंट? Nowadays there is no settlement anywhere, any place in the world. आज कोई अमेरिका में होगा, कल को ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर इंडिया आएगा, नहीं आएगा, दिल्ली आएगा, बॉम्बे जाएगा, मज़ा आया तो वापस आएगा। I mean you don't have to be under threat. तो उस तरह तो कोई भी, यहाँ क्या है, मेरे हमसाए हैं यहाँ, इधर हैं यहाँ, इनके बच्चे कौन से यहाँ बैठे हैं? एक बच्ची है इनकी हमारे पड़ोसी, अपनी बच्ची है, शी इज़ इन इंग्लैंड। दूसरा है उनका बेटा है, वो इंग्लैंड में है। तीसरा है मेरे इधर के हैं, वो कौन से यहाँ बैठे रहते हैं अपने कारोबार में? ये तो कुछ कारोबार छुट्टी, गवर्नमेंट जॉब्स तो ख़त्म हो गए, सबको तो नहीं मिल पाती हैं। आना जाना रहना चाहिए सबका, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी आई मीन आइडिया और एनीथिंग कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? आए, रहें, जाएं, मर्जी है उनकी, वैसा होना चाहिए। मुझे अगर बॉम्बे जाना होगा, मैं उठ के, मुझे ये नहीं पूछना है आपसे कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, मुझे खतरा है, मैं कौन सी स्पेशीज़ हूँ डिफरेंट। खुदा ने, भगवान ने 2 आँखें 2 मुंह, ये थोड़ा सा सोचने का आइडिया अलग है, वरना कौन सी फ़र्क है? Why should we have to see things in different way? वो पुराना टाइप जो है ना, मौज दोस्ती रोज़ान, नेचु दोस्ती रोज़ान, ग्रैंड सन दोस्ती रोज़ान, आज छुनु रोज़ान तक पुरानिस मकानस में, तो वहीं कहते कौन यहाँ आप देखें, हमारे यहाँ थे किराए पाक यहाँ सामने, तो वो भी घर खाली हो गया। दूसरे थे ये क्या कहते हैं, नियाज साहब, मतलब ये अली शाह साहब, उनका घर भी भरा रहता था, वो भी सारे अपनी अपनी तरफ से चले गए। कुछ आँख चू हुई रोज़ान, लॉकुट जाजू पाजू तिमचे हुई रोज़ान। उनकी बेटी कहीं लिया है उसने, तो बेंगलोर में रहती है। अब आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज सेटलमेंट? मेरे ही बच्चे हैं, वो क्या यहीं पे है? एक बेटा है, वो इस वक्त बॉम्बे में, वो पूना में है, और नाउ नेक्स्ट मंथ ही इज़ गोइंग टू USA। ये जा रहा है, आ रहा है, तो इस तरह का यही होगा। अब हर घर में हर तरह से यही होगा। जम्मू में जिन्होंने मकान बनाए कश्मीरियों ने, वो क्या विंटर में यहाँ 2-3 महीने नहीं जाते? पहले ज़माने में हुआ करता था, अम खे म्योन नौकरी, अम खे म्योन ये ज़मीन, अम खे म्योन मकान। When there is abundance all side, all round, तो फिर आप किसका खाएंगे? जितना आपकी काबिलियत है उतना ही मिलेगा, उतना आपको मिलेगा। और फिर मुझे कौन सा ग्रज है? मुझे कोई ग्रज नहीं। अभी ग्रज है, एक चूंट है, उसको 10 में बांटना है, खंडी खंडी एक बेनी की आइडेंटिटी की। When we have enough, that enough has to be created. That is what I think. We have to go forward, we don't have to go backwards. ये चुंगे सारी वाला बाटे ये ना वापस, ये ना ही वापस कित कहीं वो पुराने टाइप का बटा आएगा तो रहेगा पीर दर पीर, वो बात नहीं है। न मुसलमान रहेगा उस तरह, उनका स्टाइल चेंज हो गया है, वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया, वे ऑफ थिंकिंग लाइफ अब इंटरनेशनल थिंकिंग हो गई है, ग्लोबल हो गए, ग्लोबल थिंकिंग हो गई है। अब आज आप अकेले नहीं हैं यहाँ घर में। आप सोचेंगे मैं ज़मीन पत ज़मीन इत पटन कर पे तथ गोन बनाने इत करान सोन पे यम कर पे कन बह सह। आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी आगे चल रहे हैं। भरत वाज टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स, मुझे चक्कर आता है ये सुन के, क्योंकि सो एडवांसमेंट हैज़ हैपेंड।
اور ابھی آگے چلنا ہے. اور وہی جو آپ کو ابھی وہ بھرت کہہ رہا تھا, we don't have to look back, you have to look forward. Yemis vanwa dapos oisesi karan. پتہٕ ٲس میون داداجی کَران تَتہِ, سُہ اوس واکَس گژھان کین ہٮ۪تھ, تٔمِس ٲسۍ 4 زٔنۍ آسان کین تُلان, أڑۍ ٲسۍ أسۍ کیٛاہ تام کَران, أڑۍ ٲسۍ آسان خانہٕ منٛز, أڑۍ ٲسۍ گٮ۪وان ٲسۍ سٲری. Those things are gone. You don't have to be stuck to one ideas because the world is global as you say. Yes. So we have to think globally. اگر نہیں سوچیں گے اس طرح تو then we'll lag behind. یہ بتا دیجیے گا now you are in Congress. That's right. Is Congress a force that is now squeezed to Kashmir only because numerically جموں کشمیر میں کہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے؟ ایک بات میرے دل میں بھی ہے پوری طرح سے, ابھی ہے ہمارا لین پیریڈ, یو کین سے اچھا لین پیریڈ ہے, لین پیریڈ ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے دیٹ اٹ از گون اینڈ فنش. نو, ناٹ ایٹ آل. کچھ نہیں جاتا ہے. اگر بلند ارادے ہیں, آگے چلنا ہے. بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں ہماری پارٹی میں, بہت اسٹلوارٹس ہیں, دے آر لائنگ لو. ٹائم آئے گا, نئی پود آ رہی ہے, ہمیں اسٹک نہیں کرنا ہے اسی میں. ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹک ٹو دوز اولڈ نارمس. اگر وہاں سے کچھ اچھا ہے اس کو لینا ہے. ہماری قدریں ہیں, یہ بھائی چارہ تھا, وہ چیزیں لینی ہیں, مگر کچھ نیا بھی لینا ہے ساتھ میں. تو آگے چلنا ہے. کانگریس ول ریوائیو, کیونکہ ون پارٹی شو وونٹ اسٹے. اٹ ڈزنٹ, وہ ڈیموکریسی میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کانگریس ول ریوائیو اگین. خیر ناظرین, یہ رہی میرے لیے اور آپ کے لیے خیملتا بخلو, ونس اپان اے ٹائم ٹورزم منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ اینڈ اے پرسن جس کو ڈاکٹر فاروق صاحب نے صلاح جوئی کے لیے اندرا جی کے پاس بھیجا اور بعد میں اندرا جی یہ ایسی سفیر بن گئے کہ اس کو بعد میں دربار نے وہیں روک دیا. 1984 کا جو واقعہ ہوا اس کو سمجھنے کے لیے کہ روٹی ایک تھی تو پارٹی الگ نہیں تھی, کلچر ایک تھا, سیاست ایک تھی. بالکل بالکل. لیڈرشپ میں فرق, بیٹا تھا یہاں داماد تھا, اتنی فرق تھی, باقی سب سے تھا. خیر جو بھی ہے, ان کی اپنی کہانی. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.